Morning, student. We will start the new chapter, that is the constitutional design. In this chapter, we will study how what is the constitution and what is the need of constitution, what are the rights and the instruction is being provided in the constitution to run the government. We know very well that there are some sets of rules and regulation that how the government will be framed, how it will work, what are the rights, what are the guidelines for the rulers, for the executive, rights of the people. All these things are given in the constitution. So, constitution is the high authority rules and regulation, a set of rules and regulation where each and everything is mentioned that how the government will run and how it will be framed like that. Let us see the chapter constitutional design. In this chapter we will study about the Indian Constitution, what are the philosophy behind the Indian Constitution. But we will start from the one of the story of the South Africa, because South Africa is the country where the constitution there is a latest construction of constitution. We will see that what was the problem there and how he make the constitution. Let us start the chapter. Democratic Constitution in South Africa. These are the statement from which our chapter is start. This is the statement of Nelson Mandela, one of the great leader of South Africa. He is saying that I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have फाइट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन, जो वाइट लोग थे. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो एज इन इंडिया ब्रिटिशर्स वेयर रूलिंग देयर एंड नेल्सन मंडेला इज सेइंग दैट आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, वाइट के वर्चस्व के खिलाफ लड़ा है, एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन ऑल्सो. आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ a democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with equal opportunities. I have cherished the idea of democratic. हमने इस प्रकार के विचार को प्रोत्साहित किया है जो कि लोकतांत्रिक विचार है, एंड फ्री सोसाइटी है in which all the persons live together in harmony and with equal opportunity. सभी लोग सौहार्दपूर्वक और समानता के साथ हैं. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. यह ऐसा आदर्श है जिसे हम जीना चाहेंगे और जिसे प्राप्त करना चाहेंगे. But if need be, it is an ideal for which I am prepared to die. और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस विचार को प्राप्त करने के लिए हम मरना भी पसंद करेंगे. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमने वाइट के वर्चस्व के खिलाफ लड़ा है और ब्लैक के वर्चस्व के खिलाफ भी फाइट किया है. हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों और फ्री सोसाइटी, स्वतंत्र सोसाइटी समाज के ऊपर आधारित हो, जिसमें सभी लोग एक साथ सौहार्दपूर्वक रहें और समानता के अधिकार का पालन करें. यह ऐसा विचार है जिसके लिए हम जीना चाहेंगे, जिससे प्राप्त करना चाहेंगे, और अगर ज़रूरत हुआ तो इसके लिए हम मरना भी पसंद करेंगे. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. दिस वॉज नेल्सन मंडेला थे बीइंग ट्राइड, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया फॉर ट्रीजन, देशद्रोह के लिए, by the white South African government.
साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट द्वारा नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। He and 7 other leaders were sentenced to life in prison in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. वो और 7 और लीडर जिनको आजीवन कारावास दे दी गई इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द एपार्थाइड रिज्म। एपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद की नीति। सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पीपुल on the basis of color of skin, that is the apartheid system. So रंग भेद की जो नीति थी, जो स्किन के कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता था कि these are the white people, these are the black people, these are the colored people. So नेल्सन मंडेला और उनके साथ और अलग साथियों को आजीवन कारावास दे दी गई क्योंकि उन्होंने रंग भेद के नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीका मोस्ट डेयर्ड प्रिजन रोबिन आइसलैंड। वह अपने अगले 28 जीवन के 28 वर्ष जो है वहाँ के सबसे भयानक जो कारावास था रोबिन आइसलैंड, वहाँ पर उन्होंने बिताया। Struggle against apartheid. Apartheid was a name of a system of racial discrimination unique to South Africa. साउथ अफ्रीका में एक अद्वितीय इस तरह का सिस्टम लागू किया गया, रंग भेद की नीति। The white European imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading company from Europe occupied it with arms and forces in the way they occupied India. जिस प्रकार भारत को उसने कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने, उसी प्रकार ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका को भी कब्जा किया 17 और 18 सेंचुरी। But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and become the local ruler. भारत में बहुत कम ब्रिटिशर्स आए थे, जबकि साउथ अफ्रीका में ज़्यादा की संख्या में आए और वो वहाँ के हो गए, वहाँ के शासक बन गए, लोकल रूलर बन गए। द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड डिवाइड द पीपुल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। स्किन कलर के आधार पर उनको अलग अलग कर दिया। द नेटिव पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो साउथ अफ्रीका के वहाँ के मूल निवासी हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेयर कॉल्ड ब्लैक। वो लगभग जनसंख्या के 3/4 हैं और उनको ब्लैक कहते थे। बिसाइड दिस टू ग्रुप, बिसाइड दिस वाइट एंड ब्लैक, there were people of mixed races who were called colored. मिक्स्ड रेस के थे जिनको कलर्ड कहा जाता था, रंगीन चमड़ी वाले कहे जाते थे। एंड पीपुल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, और जो भारत से माइग्रेट करके गए थे वो लोग भी थे। द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर। जो शासक वर्ग था, जो ब्रिटिशर्स थे, जो वाइट रूलर थे, वो जितने भी लोग थे, चाहे वो ब्लैक हो, कलर्ड हो या इंडियन हो, सबको इन्फीरियर महसूस करते थे, उनको छोटा महसूस करते थे, अपने से उनको तुच्छ जानते थे। ए नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, दे डोंट हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। द एपार्थाइड सिस्टम was particularly oppressive for black। ख़ास तौर से ब्लैक के लिए ज़्यादा दमनकारी था, उनको परेशान करने वाला था। They were forbidden from living in white area. They can't live in the area which is bounded, which is allotted to the white people. They could work in white area only if they had the a permit। जब उनको परमिशन होता था
तभी वह वाइट एरिया में जाके काम कर सकते थे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, schools and colleges, libraries, cinema halls, theatre, beaches, wishing, swimming pools, public toilets were all separate for white and black। इन सभी चीज़ों में स्कूल, कॉलेज, होटल, हर जगह ब्लैक और वाइट की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। यह क्या था? इसको सेग्रीगेशन कहते थे, या एक तरह से अलगाववादी की नीति कहते थे कि अलग अलग, दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं, वाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। They could not even visit the church where the white was shipped. Black could not form association or protest against the terrible treatment. Even black को जो उनके खिलाफ अत्याचार होता था उसके अगेंस्ट में यूनाइट होने का भी अधिकार नहीं था। वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, अपना संगठन नहीं बना सकते थे। ये कितनी गलत बात थी। हम किसी को दबा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं। दिस इज ए टोटली inhumiliating. Since 1950s, the black colored and Indian fought against apartheid system। 1915 के आसपास से ही जो है ये सब मिल करके, जो वहाँ के नेटिव थे, ब्लैक थे, कलर्ड जो मिक्स कलर्ड के थे, और जो इंडियन जा कर के वहाँ माइग्रेंट हुए थे, बसे थे, fought against the apartheid system। They launched protest march and strike। उन्होंने विरोध मार्च शुरू किया और स्ट्राइक शुरू किया, हड़ताल शुरू किया। The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। जो ये भेदभाव वाली नीति थी उनके खिलाफ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक उसके बैनर तले सभी लोग आ करके, किसके बैनर तले? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले सारे संगठन आ करके, सारी कम्युनिटी आ करके, और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज। मेनी sensitive whites also joined the ANC, African National Congress, to oppose apartheid and played a leading role in this struggle। बहुत सारे ऐसे वाइट लोग थे जो सेंसिटिव लोग थे, ईमानदार लोग थे, या उनको लग रहा था कि ब्लैक के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वो लोग जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का साथ दिए। किसके लिए? टू ओपोज apartheid and played a leading role in the struggle। Several countries denounced apartheid as injustice and racist। बहुत सारी कंट्रियों ने ये कहा कि ये जो रंग भेद की नीति है वह अन्यायपूर्वक है और वह नस्ल भेद को उजागर करती है। But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people। लेकिन इसके बावजूद भी जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थे उनकी परवाह किए बिना उनको टार्चर करती रही, अपना शासन करती रही, और हज़ारों की संख्या में ब्लैक और कलर्ड को मारती रही। That's all in this lecture। We will meet in the next lecture।